نامنظور 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 سندھ جے بیٹن سان دشمنی نامنظور مرسو 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 سندھ کے جزائر پہ قبضہ، ہماری دھرتی پہ قبضہ، ہماری زمین پہ قبضہ، ہمارے حقوق پہ قبضہ، مرسو 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 دوستو اج کو پان گٹھیا آج today we have gathered here outside Pakistan's embassy in Washington DC behalf of Sindhi Association North America اور ہم آج یہاں پہ احتجاج کرنے آئے ہیں، احتجاج کرن آیا ہوں تو وفاقی حکومت جو آرڈیننس جاری کیا ہے which seeks to occupy our islands the coastal belt of Sindh Balochistan، اس کی ہم مذمت کرنے آئے ہیں، اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے ہیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں پاکستان پروگریسو الائنس کی، ڈاکٹر غزالہ قاضی، خاور رضوی صاحب اور ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب، سب دوستوں کا جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور سب سے پہلے آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے سائیں خالد ہاشمانی صاحب کو، آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سائیں خالد ہاشمانی صاحب کی گزارش ہے وہ اپنے خیالات اظہار کریں۔ السلام علیکم دوستو، I'm going to mix three languages, English, Urdu and Sindhi, the common language that we all understand. The reason we have gathered here is because illegally government of Pakistan, President of Pakistan has introduced an ordinance under which ordinance calls for forcibly occupying the lands of two islands off the coast of Sindh and builds concrete jungle and at the cost of environment, at the cost of natural life there. There are a lot of very rare fish life there. سندھی بات کریں۔ ہاں دوستو وڈی مہربانی تव्हां کٹھا تھیا آहियो اڄ نہیں کرے تے اچھی گڈ تھیا آहियूं تے جیئں اسی پنहिंجو پروٹیسٹ ان ॻाल्हि ते कयूं त पाकिस्तान गवर्नमेंट जेको ऑर्डिनेंस पास कयो आहे ॿिनि आइलैंड्स खे ते कब्ज़े करण जो उन जे ख़िलाफ़ असीं हिते मज़ाहिरो करे पिया आहियूं। पाकिस्तान एम्बेसी हिते वॉशिंगटन DC जे साम्हूं उन जे ख़िलाफ़ मज़ाहिरो था कयूं ऐं उन्हनि खे इहो ॿुधाइण था चाहियूं त असां कॾहिं पंहिंजनि हक़नि ते हमेशह विढ़ंदा रहंदासीं, कॾहिं बि उन्हनि खां असां पासो न कंदासीं। सो इहा ॻाल्हि यादि रखनि त हू सम्झंदा त कंहिं बेईमानीअ सां या कंहिं ट्रिक सां या कंहिं ट्रिकीअ सां असांजे राइट्स ते एक्सप्लॉइट कंदा, असीं उहो क़बूल न कंदासीं ऐं इहा जंग हमेशह रहंदी जेसि ताईं हू असांखे इक्वल राइट्स न मिलंदा। महिरबानी। تھینک یو آشمانی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا پاکستان پروگریسو الائنس کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر غزالہ قاضی صاحبہ کو آئیں اور ان کا اور بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، آئیں اور آپ اپنی بات کریں۔ غزالہ قاضی ہوں، میرے ساتھ عاصم یوسفزئی بھی ہیں، وہ سیکریٹری آف ہماری آرگنائزیشن کے سیکریٹری ہیں۔ پاکستان پروگریسو الائنس ثنا کے ساتھ اور سندھ کے سارے غریب لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں جن کے حقوق کے اوپر، جن کی زمین کے اوپر اس وقت وفاقی گورنمنٹ کا قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم لوگ ہر فورم میں اس کو لے کے جائیں گے۔ ہم لوگ پروگریسو پاکستان الائنس جو ہے وہ ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم لوگ اس بات کو ثنا کو ہم اس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ کے، بلوچستان کے اور پنجاب کی زمینوں پر اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ اوکاڑا کے فارمرز کی اور اوکاڑا کے لینڈ کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ابھی تک وہ لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر ایک
मुबारक नामी गांव है सिंध का और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर कब्जा करके इन्होंने मछेरों को उस गांव से निकाल दिया है और निकाल के उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। और इसी ये डेवलपमेंट जितनी हो रही है हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये ज़मीन उनको बिलोंग नहीं करती, ये ज़मीन उनकी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये सिंध की ज़मीन है और ये बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और उन सब की ज़मीन है। और हम लोग इस बात के बहुत सख्त खिलाफ, इस आर्डिनेंस जो उन्होंने बनाया है इस वक्त जो आइलैंड की डेवलपमेंट के लिए, हम उसके खिलाफ हैं। और ये पाकिस्तान के जो आइन है ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वो ये लैंड जो है वो बिलोंग करती है सिंध को। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम गुजारिश करेंगे जनाब सोहेल अंसारी साहब को, जो सेंट लुइस से आए हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। साईं सोहेल अंसारी साहब की गुजारिश है तो अपने ख्याल इज़हार करें। मेहरबानी दोस्तों और मीडिया के दोस्तों जो शामिल हुए हैं और सारे दोस्त जो हमारे इस प्रोटेस्ट में आज हमारे साथ शामिल हैं। मैं लतीफ़ साई की इस शेर से आगाज़ करूँगा। वॾा वण वरकार जा जिते नांग सूजन नीरा, उते अब्दुल लतीफ़ जय रस रहबर राह में। ये पुकार उन गरीब मछेरों की है जिनका रिश्ता सिंध के दरियाओं और लहरों से है, इस समंदर की लहरों से है। ये पुकार उस हर जानदार चीज़ की पुकार है जो इन जजीरों पे अपना जीवन रखती हैं और सदियों से अपने जीवन को बचाए हुए हैं। दोस्तों, ये पुकार हर जमहूरियत के हामी की है, ये पुकार पाकिस्तान के चारों सूबों की है, ये पुकार सिंध की है, ये पुकार पंजाब की है, ये बलूचिस्तान की भी पुकार है और ये पख्तूनख्वा फ्रंटियर की भी पुकार है कि हम इस नाम नेहाद ऑर्डिनेंस, इस इल्लीगल ऑर्डिनेंस को नहीं एक्सेप्ट करते। इस किस्म की डेवलपमेंट को हम नहीं। जज़ायर पे कब्जा, जज़ायर पे कब्जा, हमारे वसाइल पे कब्जा, सिंध पे कब्जा, धरती पे कब्जा, जमीन पे कब्जा। दोस्तों, ladies and gentlemen, I want to tell you that there is nothing legal about this ordinance. There is absolutely nothing. This ordinance has no place. It is a betrayal of the Constitution of Pakistan. It's a blatant betrayal of the rule of law. So our voices need to be heard. It's a matter of time that this ordinance will be defeated. Islamabad has forgotten that we all come from the same strain of blood that defeated General Zia's 11 years of martial law. We defeated the illegal barriers that were put on 18th Amendment. We defeated Ayub Khan's one unit. We have also defeated Musharraf's illegal onslaught on top of the legal institutions of Pakistan. So rest assured, this ordinance will be defeated. It will be defeated with the people of the power of the people, with the people's power of Pakistan, and we will not accept this illegal. Marsu, 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 marsu. In the end, I would like to say, we today are united. Today we are one voice. Today we have one demand. Islamabad, take back this ordinance. Take back this ordinance. Thank you very much. Thank you. Norasan! Yes! Norasan! Now I request our senior leader, Sana's former president, Sain Iqbal Tareen Sahab, please come and share your views on this issue. मुझे दोस्तों, साथियों, असाजा हमवतनो, असाजा भेरो भावरो, अजोको ॾींहुं हिक लिहाज़ खां तमाम अफ़सोसनाक ॾींहुं आहे जो अगस्त 31 ते पाकिस्तान गवर्नमेंट हिकिड़े ऑर्डिनेंस जे तहत illegal, unconstitutional, immoral act
जेको परपिट्रेट कयो आहे सिंध जे ख़िलाफ़, बलूचिस्तान जे ख़िलाफ़, असीं उन जी मज़म्मत कयूं था। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा त ऑर्डिनेंस, governing by ordinance, is actually a shameful violation of the democratic process. जहां डेमोक्रेसी खत्म होती है, जहां बातचीत खत्म होती है, जहां अक्ल नाकाम हो जाता है, वहां डिक्टेटरशिप स्टार्ट होती है। और ऑर्डिनेंस इज डिक्टेटोरियल डिमांड, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जब आपके पास पार्लियामेंट है, जब आपके पास सेनेट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, तो ये ऑर्डिनेंस कहां से आया? Shame, shame, shame. पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 172, 97 and 142 के तहत फेडरल गवर्नमेंट अभी वो कंकरेंट लिस्ट नहीं रही। अब वो अयूब का राज, यहया का राज, मुशर्रफ का राज नहीं रहा। अब हमारे पास कोई कंकरेंट लिस्ट नहीं है। अब फेडरल लिस्ट है, लेजिस्लेटिव लिस्ट है, जिसमें कहीं भी मुझे दिखा दे, हमारे मीडिया के, यहाँ के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया के लोगों को कहीं दिखा दीजिए कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकती है। दिखाया हमें। आर्टिकल 239 सेक्शन 4 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, टेम्पररी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन आप जब आईन को ऑल्टर करेंगे, अब जब आप प्रोविंशियल टेरिटरी को ऑल्टर करेंगे, तो आपको प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी में आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो ये ऑर्डिनेंस itself is unconstitutional, immoral, it's mute. It doesn't mean a thing. इसमें आप इस ऑर्डिनेंस को लेके आप जो है कागज में पकौड़े जहां बांधे जाते हैं, वो लेके उसमें पकौड़े बांधे और वो सेल करें। Shame, shame. कोई आईनी हैसियत नहीं है, इसकी वायोलेशन आईनी है, लेकिन इसका वजूद आईनी नहीं है। इसकी मज़ाहमत आईनी है, लेकिन इसका वजूद आईनी नहीं है। हम कोई गैर आईनी बात नहीं करना चाह रहे। हम अगर सिंध की बात करना चाह रहे हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि हम पंजाब के खिलाफ हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि हम बलूचिस्तान के खिलाफ हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हम पश्तूनों के खिलाफ हैं। बरा आप हमें बताइए, खुशहाल खान खटक और गुल नसीब में कौन सा इख्तलाफ? भिटाई और बुल्ले शाह में कौन सा इख्तलाफ? कौन सा इख्तलाफ? मुझे ये बताइए, जो आदमी कोयटा में रेहड़ी पे किशमिश और बेचता है और अखरोट बेचता है, उसका कराची में जो गोलगप्पा बेचने वाले रेहड़ी वाले आदमी से क्या इख्तलाफ? जब से पाकिस्तान बना है, आपने अपने आकाओं की तरह, ब्रिटिश की तरह आपने हमें डिवाइड किया। सिंध के अंदर दहकान और पंजाब के दहकान में क्या इख्तलाफ है? इंटेलेक्चुअल्स, ऑनेस्ट लोगों के बीच में क्या इख्तलाफात? ये इख्तलाफात पैदा करने वाले वो मुट्ठी भर जनरल है जिन्होंने इस मुल्क में कभी भी प्रोटेक्शन नहीं की और मुहाफिज नहीं रहे। वो मुट्ठी भर जनरल ताजर बन गए हैं। उनको यूनिफॉर्म पहनने का हक नहीं। यूनिफॉर्म प्रिविलेज है, राइट नहीं है। और आपको ये अर्न करना होता है। एक एक लम्हा जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपको जस्टिस होना पड़ता है, आपको इंसाफ की साइड लेना पड़ती है। साजिशें करेंगे। आप अपने दुश्मनों के साथ बात करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रस्ट को कायम करने के लिए आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इक़दाम लेते हैं कि एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट पैदा हो। आपने तो जब से पाकिस्तान बना है, आपने CDB आपने इस्तेमाल किया।